جو کرنے کے لیے اسٹیرائڈز وغیرہ لگاتے ہیں. اسٹیرائڈز باڈی بلڈنگ میں کس حد الاؤڈ ہیں, نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو کس حد تک ہیں؟ کوئی فائدے ان کے, کیا نقصان؟ دیکھیں ہر چیز کا فائدہ بھی ہے, نقصان بھی ہے. اس کے میڈیسن وغیرہ جو اسٹیرائڈ لیتے ہیں اس کے فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہیں. ایک حد تک یوز کریں گے تو فائدہ ہے, اور حد سے زیادہ گزر جائیں گے تو پھر نقصان ہی ہے. تو آپ اس کے اوپر جو پیچھے ڈائٹ کی بھی بات ہو رہی تھی, اگر آپ میری باڈی کو سامنے رکھتے ہوئے, ظاہر ابھی ماڈل میں ہی کر سکتا ہوں, میری باڈی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا ڈائٹ پلان ریکمینڈ کرتے ہیں؟ مجھے ویسے بتایا ہوا آپ نے, میں آڈینس کے لیے ریکمینڈ پوچھ رہا ہوں. میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ جو ہوتی ہے نا آپ کی ریکوائرمنٹ چلتی ہے. اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں نے ایسی باڈی بنانی ہے, تو اس کی ڈائٹ اس کے ریکوائرمنٹ بتا دیتے ہیں. مطلب اسٹوڈنٹ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت بلک کرنا ہے, تو میں آپ کو ٹوٹل بلکی ڈائٹ بتا دوں گا, ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں میں نے ماڈل شیپ رکھنی ہے, تو اس کے لیے پھر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ میٹھا نہ استعمال کریں, آپ فیٹس والی چیزیں کم لیں, آپ پروٹین لیں, آپ کاربس لیں, تو اس سے آپ کا مسل جو ہے نا بہتر سے بہتر ہو جائے. تو اسٹوڈنٹ کو تو پتہ نہیں ہے, کئی مرتبہ وہ کہتا بھی ہے کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ استاد کو اسے بول کے دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ تیری باڈی اس بننے کے لیے قابل ہے یا اس کے لیے, یا آئیڈیل باڈی میرے استاد کے مطابق آئیڈیل باڈی اور ہو سکتی ہے اور اسٹوڈنٹ کے مطابق آئیڈیل باڈی اور ہو سکتی ہے. فرض کہ میں آپ کو کہتا ہوں جی میں ایسی باڈی بنانا چاہتا ہوں, تو آپ کیا ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ یہ باڈی جو آپ مانگ رہے ہیں یہ آپ کی باڈی ٹائپ کے لیے سوٹ نہیں ہے, میں اس سے آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہوں؟ ہم اس کو دیکھتے ہیں, بتاتے ہیں کہ فی الحال باڈی آپ کی ایسی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے جو باڈی ہے نا اس کو اس انداز میں لے کے چلو تو اس لیول پہ پہنچ جائے گی, ٹھیک ہے نا. دیکھیں فوراً تو اس نے ویسا نہیں بن جانا نا, اس میں ایک ٹائم لینا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم بہتر سے بہتر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کئی سم لڑکے کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم نے فل بلگی بھاری کرنا ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں یار زیادہ بھاری نہ کرو, آپ باڈی کو شیپ میں رکھو. باڈی بلڈنگ باڈی شیپ کا نام ہے نا, ٹھیک ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو فل ہیوی کرنا ہے, میں نے تو بہت چوڑا نظر آنا ہے. مطلب باڈی بلڈنگ بلکنگ کا نام نہیں آپ فرما رہے ہیں, مجھے کریکٹ کیجیے گا. باڈی بلڈنگ بلکنگ کا کام نہیں, باڈی کو کم شیپ میں لانا ہے, باڈی کو شیپ میں رکھنا ہی باڈی بلڈنگ ہے. مطلب ریکمپوزیشن, باڈی کا مطلب کب نکل گیا نہیں, یا فیٹ آپ کا فیٹ چڑھ گئی ہے, باڈی کو آئیڈیل اسٹیٹ میں رکھنا. آئیڈیل باڈی آپ کس کو کہتے ہیں؟ آئیڈیل باڈی ہم اسی کہتے ہیں کہ جیسے آپ کی باڈی ہے, آپ کی چسٹ, آپ کا جو بازو ہے, آپ کے شولڈر ہیں, وہ ایک جیسے پیارے سے بنے ہوں, اور آپ کی جو کمر ہے وہ چھوٹی رہے, نیچے سے لیگز آپ کے اچھے پیارے بنے ہوں, یہ آئیڈیل باڈی میں آتی ہے. آئیڈیل باڈی. اور اگر ٹوٹل آپ بھاری ہوتے ہیں, آپ نے بہت بڑا پیڑ لگے تھے, بہت بڑے چوڑے ہو گئے, بھاری ہو گئے, تو وہ تو ایک موٹے بندے میں آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. موٹے بندے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. رائٹ. اگلا سوال ہے کہ باڈی بلڈنگ کے لیے پہلے کیا کریں؟ پہلے بلکنگ کریں پھر باڈی بلڈنگ کریں, یا پہلے بلڈنگ کریں اور پھر آہستہ آہستہ بعد میں؟ یہ ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. یہ جو سوال ہے یہ اس کے دو جواب ہیں, ٹھیک ہے نا. پہلا ہے کہ ایک بندہ آتا ہے وہ بھاری ہے, آلریڈی بھاری بلک ہے, ٹھیک ہے, تو ہم تو یہ کوشش کریں گے کہ اس کو پہلے ہم باڈی شیپ میں لائیں, اس کو تھوڑا اسمارٹ کریں, رائٹ. وہ آٹومیٹک باڈی اس کی شیپ آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. اب جو بندہ ہمارے پاس اسمارٹ آیا ہے تو اس کو ہم شیپ میں ہی کوشش کریں گے بڑا کریں. رائٹ. پہلے اس کی شیپ بنائیں گے اور آہستہ آہستہ خود بخود بلکنگ ہوتی ہے. ہاں, وہ خود بخود بلک ہوتا ہے, شیپ میں ہی اس کو بڑا کریں گے. اس کی ڈائٹ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اس بھاری بندے سے ڈفرینٹ ڈائٹ ہے. تو کس کو بلڈ کرنا زیادہ آسان آپ کو لگتا ہے؟ جو بالکل سلم ہے, اسکنی ہے, اس کو بلڈ کرنا جلدی آسان کر سکتا ہے, وہ موٹیویٹنگ بھی ہوتا ہے, یا جو موٹا ہے اس کو پتلا کرنا؟ ان دونوں میں سے آسان کام کون سا ہے؟ ہمارے لیے آسان ہے جو اسکنی ہے. جو اسکنی ہے اس کو بلڈر بنانے میں بہت ایزی ہے, رائٹ, اور وہ جلدی ہو جاتے ہیں لڑکے فٹ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ اگر ڈائٹ میں کوئی بد پرہیزی بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی اسکن باریک ہے, وہ اسکنی لڑکے ہیں, تو وہ بہت جلدی تیزی سے وہ بلڈر بن جاتے ہیں. اور جو بلکی ہے اسے ہم پہلے کوشش کریں گے اس کا فیٹ لوز کریں, ٹھیک ہے, اس کو بعد میں اس کے مسل کے اندر جان پیدا کریں, اس کو دوبارہ مسل اس کا اسٹینڈ کریں, تو وہ تھوڑا سا ذرا ڈیفیکلٹ کام ہے. اب جو موٹے لوگ ہیں ان کے ہاں جب تک فیٹ ان کی نیچے نہیں آتی ان کی باڈی کی ڈیفینیشن نہیں نکلتی, رائٹ, بالکل. تو کیا باڈی بلڈنگ اور فیٹ ریڈکشن, فیٹ لاس ایک الگ الگ پروسیس ہیں یا ایک ہی چیز میں یہ دونوں ہو سکتے ہیں؟ نہیں, یہ الگ الگ پروسیس ہے, دو ان کا سسٹم, دو الگ الگ پروسیس ہیں. تو فیٹ لاس کے لیے کیا ٹپس ہیں جن کا پہلے, یعنی جن کو فیٹی لوگ ہیں جو بہت موٹے ہیں, آپ جب بتا رہے ہیں کہ دو الگ پروسیس ہیں, باڈی بلڈنگ الگ پروسیس ہے اور فیٹ جو ہے وہ فیٹ ریڈکشن, فیٹ لاس الگ
प्रोसेस है। इन दोनों में से अगर कोई शुरू करना चाहे तो पहले वो क्या करे, पहले फैट लॉस करे या पहले बॉडी बिल्डिंग करे या दोनों साथ साथ लेके? सबसे पहले वो अपना फैट लॉस करे। राइट, तो फैट लॉस के कोई टिप्स, कोई टेक्निक्स खाने के हवाले से? फैट लॉस में ये होता है कि वो हमारे पास आता है, हम उसको जो है ना ट्रेनिंग करवाते हैं एक मखसूस सी, ज़्यादातर उसको हम कार्डियो पे लेके आते हैं, राइट, ताकि इसका फैट तेज़ी से कम हो, ठीक है। और साथ में उसको डाइट हम ऐसी देते हैं जिससे सिर्फ उसको प्रोटीन ज़्यादा देते हैं, जाके उसके मसल अंदर से मजबूत हों, फैट ना आए, ठीक है। अब उसने फैट जब कम कर लिया है, उसका फैट कम हो गया है, वो थोड़ा शेप में आने लग गया है, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब इसको बॉडी बिल्डिंग हमने नए सिरे से इसको तैयार करना है। राइट, तो उसके लिए ये होता है कि हमने उसको क्या करना है, हमने डाइट में उसको क्या करना है, हमने कहना है कि आप अंडे का इस्तेमाल करें, आप चिकन का इस्तेमाल करें, आप फ़िश का इस्तेमाल करें, राइट, ठीक है। साथ में कुछ फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वो उसको हमने देने होते हैं, साथ ट्रेनिंग उसकी है। बाकी ओवरऑल कैलोरीज वगैरह और उसको फैट वाली चीज़ें और जितनी भी ये ना तली हुई एवरीथिंग टोटल बंद कर देते हैं। राइट, तो कैलोरी से अगला सवाल निकल आया, कैलोरी से आपने याद करवा दिया। एक बॉडी को रोज़ाना कितनी कैलोरी चाहिए बॉडी का करंट स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए? जो मैंने पहले बताया, जो बल्गी बंदा उसकी जो कैलोरीज हम बिल्कुल ही बंद करवाते हैं, राइट, ठीक है ना, ताकि कैलोरीज अंदर जो जमा है ना वो हम निकले, पहले वो निकाले, फैट और कैलोरीज को हम ख़त्म कर देते हैं। राइट, अब जो बंदा स्मार्ट है उसके लिए हम उसको कैलोरीज ज़्यादा दे देते हैं, राइट, 2-2.5 हज़ार उसको डेली कैलोरीज देते हैं हम, ताकि उसकी बॉडी फिट हो अंदर। नॉर्मल बॉडी की नीड क्या है कैलोरीज कम से कम 2 से 2.5 हज़ार 2 से 2.5 हज़ार रोजाना चाहिए बॉडी की। तो मोटे लोग इसलिए होते हैं कि क्या वो कैलोरीज का ज़्यादा उनकी बढ़ रही होती जी, वो कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं और वो बर्न नहीं करते, इस वजह से कैलोरीज ली, वो जमा हो गई और उसको बर्न नहीं किया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता शटाक करके बढ़ती गई और बहुत ज़्यादा उनके अंदर हो जाती है। तो इसका मतलब है, आप ये जैसे बढ़ी है, इसका मतलब है इसको वापस भी इसी तरह लाया जाएगा, कम की जाएंगे जी, स्लो मोशन, कैलोरी डेफिसिट करेंगे। यस, राइट। तो कैलोरी डेफिसिट के लिए अक्सर मैंने कुछ आपने गाइड भी किया और कुछ मैंने खुद भी पढ़ा, लेकिन वो आपकी गाइडलाइन ही को मैं असल में रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ ताकि वो पब्लिक में थे। तो कैलोरीज डेफिसिट किस तरह से करेंगे? क्या फास्टिंग करेंगे, क्या उसके लिए वॉक रिकमेंड करेंगे, या कार्डियो ही उसका काम पूरा कर देगा? ये तो डिपेंड करता है उसने जिम में करनी है या उसने पार्क में करनी है। राइट, दोनों तरीके से हो सकती है। जी, दोनों तरीके से हो सकती है। राइट, जिम में रह के भी, जिम में रह के ये हो गया कि उसकी वहाँ पे एक्सरसाइज जो गेम भी जो उसकी बॉडी के मुताबिक चलती है वो भी चलेगी, साथ में उसको कार्डियो भी चलेगा, तो वो जितना भी उसका फैट बर्न होगा, साथ में उसकी बॉडी शेप भी अच्छी रहेगी। राइट। और अगर वो पार्क में करेगा तो उसकी शेप तो अच्छी नहीं होगी, लेकिन उसका जो है ना वेट कम हो जाएगा। पार्क में मतलब ये है कि एक काम होगा कि फैट लॉस हो जाएगा, यानी वॉकिंग से आप कह रहे हैं फैट लॉस हो जाएगा, बॉडी शेप नहीं बनेगी। जिम में रह के दोनों काम हो जाएंगे। दोनों काम हो जाएंगे, ये जिम तो का फायदा। अगर वॉक वाला काम कितनी देर आप रेकमेंड करते हैं, फर्ज के मेरी बॉडी को आइडियल करते हुए, क्योंकि इस वक्त मैं और प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो अगर मेरी बॉडी के अंदर इस वक्त मेरी फैट जो है तकरीबन 15-16 के करीब है %, तो इसको अगर मैंने कम करना है तो मुझे कितना डेफिसिट करने की ज़रूरत है? आपकी जो बॉडी है, आपकी तो बॉडी बहुत आइडियल बॉडी है, राइट, ठीक है, आपका तो कोई इतना मसला नहीं। ये तो हम कर रहे हैं बात बल्कि की, बल्कि लोगों, वो डिपेंड करता है कि उसका 100 kg वजन है, उसका 150 है, उसका 110 है, 20 है, उसके मुताबिक उसमें चलना है, उसके मुताबिक उसको टाइम लगेगा। राइट। मैक्सिमम एक बंदा एक माह में 10 kg जो अपना वेट लॉस कर सकता है। राइट। तो आप अभी आपने बात की कार्डियो की। कार्डियो लफ्ज़ एक टेक्निकल है, जो तो बंदा जिम में आ चुका है उसे तो शायद आपने समझा दिया है, मुझे भी समझा दिया है। एक ले मैन जो करना चाह रहा है, शुरू करना चाह रहा है, व्हाट इज़ कार्डियो? कार्डियो से क्या मुराद है? कार्डियो में ये आता है कि आपने वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, ठीक है, और आपने साइकिलिंग करनी है, राइट, ये कार्डियो में आता है। ये कार्डियो में आता है, ठीक है। तो पूरे जिम में अगर किसी के पास किसी दिन का टाइम कम है तो कोई 2 या 3 ऐसी एक्सरसाइजें जो आप समझते हैं कोर हैं, ये सबसे ज़रूरी जो बॉडी बिल्डिंग के ये हिस्से हैं, बाकी कर लें तो बहुत अच्छा है। अगर रह जाए, फ़र्ज़ के मेरे पास 10 मिनट रहे हैं, आज मैं स्किप भी नहीं करना चाह रहा और मेरे पास सिर्फ निकले ही 10 मिनट है, कौन सी 2 या 3 एक्सरसाइजें जो आप कहते हैं कि ये नहीं छोड़नी? 2 या 3 एक्सरसाइज डिपेंड करता है उससे नीड क्या है। मसलन एक बंदा है, उसका बाजू कमज़ोर है, राइट, और वो कहता है कि आज मैं ट्रेनिंग जो है ना, यानी कि आज नहीं करना चाहता, कम करना चाहता हूँ, तो उसको चाहिए कि वो जिम में आए, ठीक है, स्टैंडिंग जो है ना बारबल करे, ठीक है, 1 मिनट नंबर करे,
और ट्राइसेप का 1-2 सेट लगाए, ठीक है, और उसके ओके हो जाएगा। इसी तरीके से वो कोई लड़का है वो कहता है यार मेरी चेस्ट जो है ना वीक पॉइंट है, वो जिम में आए, उसने जिम में आके बेंच प्रेस किया है, इंक्लाइन की है, फ्लाइंग डंबर किया है, पुलर किया है, चलो 4 ट्रेनिंग बेहतरीन होगी, ओके। राइट। एक जो जिम है जो लोग घबराते हैं और बड़ा उसका नाम बदनाम है लेग डे। लेग डे अक्सर स्किप हो जाता है। कितनी अहमियत है लेग की? लेग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। लेग की इतनी अहमियत है जैसे आप एक घर बनाते हैं तो उसके नीचे नींव डालते हैं ना, इसी तरह इंसान की बॉडी के लेग है, ठीक है। लेग लाजमी लगानी चाहिए और लोग इससे घबराते हैं। लोग घबराते भी हैं और वो क्योंकि नज़र नहीं आती ना, वो पैंट में छुपी रहती है तो इसलिए इग्नोर भी करते हैं। नहीं, वो नज़र आती है, देखने वाले को नज़र आती है। राइट। वो देखते हैं कि यार ये तो ऊपर से इसकी बॉडी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लेग्स बहुत कमज़ोर है, इसका मतलब ये ना बॉडी बिल्डर कंप्लीट नहीं है। राइट। ये जस्ट जो है ना दिल पिशोरी कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग। तो आप समझ रहे हैं कि लेग डे इग्नोर किया जाता है, लेकिन आप समझते हैं कि लेग डे सारी गेम में से ज़रूरी गेम है। बहुत ज़रूरी है। तो एक मैंने आपने मेरे ख्याल डेड लिफ्ट करवाया था। यस, डेड लिफ्ट मुझे अक्सर करवाते रहते हैं, मुझे लगता भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कहते हैं ये सारे जिम की जान है, ऐसा क्यों? डेड लिफ्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। डेड लिफ्ट के हम लोग देखें ना, यहाँ पे डेड लिफ्ट बहुत कम लगाते हैं, लेकिन आप तो देखें कि जो हमारे बाहर के बॉडी बिल्डर हैं वो कितनी डेड लिफ्ट हैवी भी करते हैं। राइट। ठीक है ना, इससे देखें, इससे आपके बैक मसल टोटल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपकी कमर छोटी होती है, ठीक है, और आपके पट्टे सारे ओवरऑल मजबूत होते हैं, क्योंकि पट्टे बैक साइड पे होते हैं, और डेडलिफ्ट का टोटल वजन जो है ना पूरी बैक पे पड़ता है। हैमस्ट्रिंग से लेकर ऊपर तक जो है ना डेडलिफ्ट का सारा वजन पड़ता है। तो डेडलिफ्ट बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है। तो मैंने आज तो बहुत सारे जितने मेरे जिन में सवाल थे मैंने कर लिए, क्योंकि ये पहला पॉडकास्ट था सर के साथ। तो मैं रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे उस्ताद भी हैं, रिक्वेस्ट वाली बात है, मैं तो उनको कह देता हूँ और वो तशरीफ़ आते रहते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके कुछ सवालात जो नेक्स्ट टाइम आप चाहेंगे कि अगला पॉडकास्ट जब मैं सर के साथ करूं तो क्या सवालात आपके हो सकते हैं। आप अपनी बॉडी शेप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट नंबर है 033269242445। आप बताना चाहेंगे नंबर? नहीं, आप बता दें। राइट। तो आप रीच आउट कर सकते हैं, मुझे अपनी बॉडी शेप भेज सकते हैं, मैं वो सर को दिखा के आपके लिए कोई रिकमेंडेशन जो है वो मैं लेके वक्तन फ़क्तन मैं दे भी दिया करूँगा। बल्कि बेहतर होगा कि आप वो सवालात मुझे कमेंट्स में लिखें। अगली मरतबा आपके कमेंट्स को कंपाइल करके अगला पॉडकास्ट हम सर के साथ दोबारा करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला मेरे लिए। तो मेरे उस्ताद होने के नाते मेरे लिए आज़ाद की बात भी है, लेकिन मेरे जो फॉलोअर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भला इसमें होना था, तो इसलिए मैंने ये कलेक्टिव बेनिफिट में आपको ये ज़हमत दी, और बड़ी आई फील वेरी हैप्पी कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। आपसे दोबारा मुलाकात होगी।